estrogen activity with BMI and a positive relationship with constraint. This is Like only women or men also? in both men and women. That's what their hypothesis was, because the studies that have been done in rats so far, they have shown that it doesn't really depend on the sex. Like the plasma level of estrogen also correlates with BMI. There are studies that prove that, but this stud that's why they wanted to show that whether the local synthesis of estrogen is also having a significant impact. Like if they can show that apart from the plasma levels, local synthesis also plays an important role, then it becomes a sex independent parameter that can be used, right? Nice. So that was the purpose of the study main. So But where to measure the aromatase activity? Since some amount of aromatase activity will be present everywhere, like they have said, so we have to do a review of literature to determine where exactly we hypothesize that the estrogen would act for these effects to take place. So when they did the review of literature, uh, this is what they wrote in the paper, that amygdala is a brain region that has been shown to contain very high levels of aromatase in rodents, monkeys, and humans. It is central to the control of emotional arousal and has been implicated in the control of feeding behavior in animals. In humans, the amygdala has been shown to be involved in hunger enhanced memory for food stimuli, cued appetite response to food, and cognitive inhibition of brain activation elicited by food stimulation. Functional imaging studies support the activation of amygdala networks when viewing food, eating images, especially when hungry, and so basically, they say that the amygdala is the region that should be affected. Like it has been shown in multiple studies to be related to eating behavior. Like it lights up on scans when seeing food and hunger enhanced memory and all. Okay, so and next the big question comes, like how to measure the aromatase activity. Like I said that the estrogen receptor activity can't be measured in vivo at present. So uh, this is also an enzyme. So how do we measure its activity? So the basic thing that we have read even in our class 12, whenever such a thing comes, they mark it with a radio tracer and then do some imaging. And this is exactly what they did. And let's try to make sense of what they said. Like they have used some fancy terms. No, Let's just break it undergraduates. down. This Like is basically they products of use PET estrogen in brain scans. and correlation with Then obesity and self-control. they have given all the 9.0. specifications of the PET scan that they use, हाँ ठीक है like आपका whole body PET, Siemens HR positive, so in three-dimensional dynamic acquisition mode. So these are तो क्या सुन not रहे हो very important if you just want ऐसे नहीं to मतलब know exactly what they have done. So basically, after that, they have injected 11C Vorozole, and they have given the specifications for the injection. So this is a radio tracer that binds to aromatase and has 11 carbon. So when we do a PET scan, that would lighten up. However, this 11 carbon vorozole is a very slow radio tracer. Like the diffusion is very slow, so they have to do the PET scan for 90 minutes. Like that's the significance of 90 minutes. Like for the whole period of 90 minutes, they monitor how that tracer is being taken up. And they have also taken the arterial blood samples. uh, this is important because when these studies are generally done, they define a term called the volume of distribution, which I'll show in the next slides. For that, they basically compare the levels in the tissue to the levels in the arteries. Like this definition slightly differs from the definition that we read in pharmacology. Here, a high
volume of distribution means more uptake. So then they mark circular regions of interest on the amygdala using MRIs. So whenever such imaging studies are done, they basically put a point on the computer that this is the region of interest, and basically the computer calculates all that stuff. So they used MRI and they specified the amygdala region as the region of interest. Are we measuring Next, the aromatase activity? ha. ठीक. And next, they use some fancy stuff like Logan graphic analysis. What is important here is that they use a two tissue compartment model. Okay? Like this two tissue compartment model has been used in baboons and humans in 2 studies, and they have seen that it works fairly well. So they use the same method. So what is this two tissue compartment model? So when the kinetics of this 11C vorozole studies have been done, basically they have 3 models for this radio tracer. When the vorozole goes in the blood, they take that there are 2 tissues, C1 and C2. C1 takes up the radio tracer and any other component that is going in the plasma. It's a non-specific component of the tissue, and it takes up the radio tracer very fast. Subsequently, C2 is a compartment of the tissue that takes up the radio tracer slowly, and it is much more specific. Like it also has a non-specific component, but that component is comparatively much less. And there is if you want to read more on this, like you can DM me and I can send you the paper. Like they basically have a whole lot of maths, and they define the whole kinetics of the process, and they define like how all that would change the concentrations. They basically measure the C2 component radio tracer levels, and they find out the VT, the volume of distribution. So the volume of distribution is basically defined as like at I said that this is a slow radio tracer, right? So at first, when you start the PET scan, there would be no brightening up of the amygdala, and gradually over the time course, the radio tracer would be taken up. At equilibrium, there would be no flux between the components in the two tissue compartment model. Okay, so at that time, the volume of distribution is defined as the concentration in the tissue by the concentration in the arterial blood. And this definition differs, as I said, from the pharmacology description. So here, if the VT is more, it basically means that there is more radio tracer. And some other important things, like they basically took 43 healthy people. Okay. Next is that women were 24 and men were 19. So it's not much of a difference. And the mean age was 40.4 with a range of 21 to 67. So it's a wide enough range. And that includes both this range. What is to be noted is that this range includes postmenopausal women also. And mean BMI of 28 with range of 17 to 49. So they have taken all the BMI range, right from normal weight to overweight, obese, everyone. And a subgroup of 29 participants were used to fill the MPQ questionnaire for neuropsychological evaluation. And that includes 17 women, 12 men. However, of this, what is important is that of these 29 participants, only 27 they have actually given the data and analyzed. Like I haven't gone through the supplementary file, but they probably have some reason to discount the 2 other data points. Okay.
So this is to be noted that they have used 29 participants but given data for only 27. Like sometimes if this number increases too much, that can become a limitation of the study, that you are losing data. And all reproductively competent women were scanned in the follicular phase of the menstrual cycle. This is important because the blood level of estrogen would vary in women based on the phase of the menstrual cycle. So they have specified that they only take after 5 to 10 days from the beginning of the menstrual flow. And these are the exclusion criteria, like no So, drugs, one no second. inhibitor. So how would blood levels of estrogen affect PET scan images? करेगा क्या? I don't know. नहीं, बेसिकली ये है ना कि वो कंफाउंडर हो जाएगा कि अगर ब्लड में ज्यादा हेलो एस्ट्रोजन आएगा। क्या? सॉरी आवाज कट गई यार। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ब्लड में ज्यादा प्रीवियस स्टडीज है जिसमें उन्होंने ब्लड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के साथ बीएमआई का कोरिलेशन दिखाया है, तो मेनली ये है कि अगर ब्लड में ज्यादा एस्ट्रोजन रहेगा तो वो एमिगडाला में वो डिफ्यूज कर जाएगा। ओके ओके ठीक है, समझ गया। अंडरस्टूड। हाँ हाँ। ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है उससे एरोमेटेज का एक्टिविटी कैसे पता लग रहा है? वो रेडियो ट्रेसर है, वो जाके एरोमेटेज से बाइंड कर जाएगा। या जहाँ पे इनहिबिटर ज्यादा है वहाँ पे एरोमेटेज ज्यादा है, ये लॉजिक है ना आई थिंक। हाँ हाँ तो वो जाके एरोमेटेज को चिपकता है। हाँ 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 एग्जैक्टली। लाइक 12 में भी जो हम डीएनए वगैरह का सारे स्टडीज नहीं पढ़ते थे कि प्रोटीन को टैग कर दिया, 14 नहीं डीएनए को था। टैग कर। हाँ हाँ, वो तो मतलब डिफरेंट ट्रेसर्स थे, पर मैं बोल रहा हूँ मतलब कॉन्सेप्ट सेम है ना कि रेडियो ट्रेसर से अगर टैग कर हाँ दो सही है। और फिर हाँ, तो वो जहाँ पे ज्यादा रेडियो ट्रेसर दिखेगा मतलब वहां पे वो चीज ही ज्यादा है। आई थिंक उन्होंने सॉरी आवाज़ आ रही? हाँ, उन्होंने अमिगडाला आइडेंटिफाई किया कि अमिगडाला में ही देखेंगे हम, बाकी सब जगह जो होगा हाँ वो होगा। एग्जैक्टली, और रीजन ऑफ फिर इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया उन्होंने एमआरआई करके। कि बाकी भी और जगह बढ़ा हुआ मिलेगा बट हम तो सब यहीं देखेंगे। ठीक है, सही है, ओके। हम्म हम्म। नाइस। और फिर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में सारा कुछ कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू ओबेसिटी ना हो ओके और बाकी डिजीजेस ना हो और फिर कोई दवाई ना ले रहा हो एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। अब तो दिस वाज अ वेरी लाइक क्लासिकली सिंपल स्टडी था, कम सैंपल साइज था और काफी बढ़िया उनका रिजल्ट आ गया। तो अच्छा बढ़िया। लगा मुझे देख के रिजल्ट कि पूरा एकदम सुंदर कोरिलेशन देख रहा था ऐसा कि बढ़िया दिख रहा है। एमिग हाँ कि एमिगडाला में वीटी जितना ज्यादा हो गया तो बीएमआई कम होता चला गया। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट जो इनिशियली उन्होंने हाइपोथेसाइज किया था कि इसका अगर लोकली एस्ट्रोजन सिंथेसाइज हो रहा है तो उसका सेक्स का ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो वो लोग, और फिर वो सिमिलर आ गया कि ये जो ग्रे रीजियंस है वो 95% सीआई के है और पूरा नियरली ओवरलैप ही हो गया, तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में। वीटी मतलब अपटेक होगा ना, लाइक वोरिकोनेजोल का हाँ, अपटेक, पीटी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपटेक। हाँ 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 एग्जैक्टली, कि टिश्यू में कॉन्सेंट्रेशन बाय ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली वीटी एक मतलब बोलते वीटी हैं ज़्यादा है, वॉल्यूम एसवीटी ज़्यादा ऑफ, है, ठीक है। हाँ हाँ, पर ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कि अगर सपोज वीटी 2 हुआ मतलब ब्लड के कंपैरिजन में डबल है। डबल, ओके नाइस। तो अगर एरोमेटेज ज़्यादा है तो ठीक है, एस्ट्रोजन बोलता है कि एस्ट्रोजन हल्का करा रहा है हाँ, लोगों को। नाइस। एरोमेटेज ज्यादा है तो एस्ट्रोजन ज्यादा है, तो कंस्ट्रेंट ज्यादा है और बीएमआई कम है। तो ये उनका हाइपोथेसिस था और फिर उन्होंने कांस्टेंट के साथ किया तो भी ऐसे बढ़िया रिजल्ट आ गया कि ये भी 95% सीआई ओवरलैप कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो एक सेकंड, सॉरी, व्हाट इज योर कंस्ट्रेंट ये यहाँ? मतलब वो भी समझ हाँ, में नहीं आया। अब उन्होंने नेक्स्ट किया कि क्योंकि उनका मेन बीएमआई का वो लोग हाइपोथेसिस यही दे रहे थे कि कंस्ट्रेंट के ऊपर मेन डिपेंड करेगा कि जिसमें लोकली सिंथेसाइज एस्ट्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रहेगा उसका खाने के ऊपर और इसीलिए उसका बीएमआई कम होगा। तो मेन उन्होंने फिर एमपीयू के डिफरेंट जो ट्रेड्स है
कंस्ट्रेंट के अंदर उनके साथ उन्होंने किया। ओके ओके। तो देख कि कैसे चल रहा है। तो जो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट में इंटरेस्ट लगा कि जब टोटल सैंपल 27 में किया तो हाईली सिग्निफिकेंट आया, मतलब 0.01 के भी नीचे आया, पर हाँ मेन में सिग्निफिकेंट इनका नहीं आया। तो इसका ये है कि क्योंकि इनका सैंपल साइज बहुत ही कम था, 27 और 12 मेन थे, 15 वुमेन थे। तो मुझे लगता है कि like what they could have done is they could have maybe increased the sample size a little, हाँ कि मेन में, क्योंकि वुमेन में सिग्निफिकेंट आ रहा है, टोटल सैंपल में भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, पर मेन में सिग्निफिकेंट नहीं है। और जो और एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ट्रेडिशनलिज्म एग्जैक्टली उन्होंने क्या, मतलब क्या ट्रेडिशनलिज्म से मीन किया ये मुझे समझ नहीं आया, पर ट्रेडिशनलिज्म सिर्फ मेन में सिग्निफिकेंट आया और देखना फिर कोई में डिक्टेटर नहीं। का मतलब ढूंढने की कोशिश करते हाँ वही। तो बेसिकली अब इस स्टडी से अगर मतलब बोलो कि क्या क्या समझ आता है और क्या लिमिटेशंस है, अब तो डिस्कशन ही है, तो डिस्कस ही करना है। मतलब लिमिटेशंस है, स्ट्रेंथ तो ठीक है, दिख गया अच्छा कोरिलेशन, सब कुछ सब कुछ। ये जो क्वेश्चन है इसके, कैन यू टेल मी लाइक सम एग्जांपल क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहे हैं? ये एमपीक्यू क्वेश्चन है, उनका शायद ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स है, मतलब ये उनका सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया होगा, like these are validated questionnaires. एमपीक्यू का फुल फॉर्म पता है तेरे को? मैकगिल पेज Multi-dimensional personality questionnaire. ये मैं शेयर कर देता हूँ यार, हाँ हाँ मतलब मैं स्क्रीन शेयर कर देता तो तुम्हें डिस्कशन एक बार बता दूं, फिर एमपीक्यू का हूँ। हाँ कर ले दिखा कर ले, दूं। हाँ सही है। हाँ कर। हाँ हाँ। तो जो लाइक इस स्टडी से आफ्टर यू रीड द स्टडी, और किसी का कोई क्वेश्चन है, और या फिर लिमिटेशंस कुछ लगे कि नहीं ये तो ठीक नहीं किया इन लोगों ने, मैं करता तो डिफरेंट करता। एनीवन? सॉरी एक is सेकंड। the हाँ मतलब do they use blood estrogen levels somewhere as a covariate or something? मतलब रिग्रेशन एनालिसिस लगा है कि उन्होंने और कुछ किया है क्या एज वगैरह के अलावा? हाँ, like they did ANOVA, like they did regressions, adjusting for age, then sex, then constraint में they adjusted for BMI also. अच्छा मतलब व्हाट, हाउ डज दिस, ये क्या फर्क, मतलब हाउ कैन दे But- कंट्रोल फॉर नहीं बीएमआई? नहीं नहीं, नहीं मतलब उन्होंने मतलब इंडिविजुअली ग्रुप्स में फिर उन्होंने देखा था कि ग्रुप्स में हमारा डिफरेंट तो नहीं आ रहा ज्यादा, कि बायस ना हो सैंपल में, विद इन द सैंपल उन्होंने कंस्ट्रेंट के साथ नहीं, मतलब उन्होंने शायद एज और सेक्स के साथ बीएमआई का करके देखा था कि विद इन द सैंपल मेन और फीमेल में बहुत डिफरेंट ना हो जाए। नहीं हाँ, विद इन वो द मैं, सैंपल मुझे भी समझ नहीं आया। देखो अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं बीएमआई और एरोमेटेज, हाँ मतलब सपोज ऐसा था तो हाउ कैन वी कि कंट्रोल फॉर बीएमआई? हाँ कि नॉर्मल बीएमआई लेवल, ओवरवेट और ओबीस, तीनों में अच्छा। मेल और फीमेल का डिफरेंस है। ठीक है। तो उन्होंने फिर इंडिविजुअली देखा था कि उनमें तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, तो वो स्टडी किया था कि कोई भी ग्रुप, लाइक सपोज नॉर्मल वेट मेल, नॉर्मल वेट फीमेल, और फिर ओवरवेट मेल, ओवरवेट फीमेल, ओबीस मेल, ओबीस फीमेल, ऐसे कोई भी ग्रुप डोमिनेट ना कर जाए, क्योंकि उनका सैंपल साइज काफी छोटा था, तो अच्छा उन्होंने उसका भी एनालिसिस किया था। और एक टेबल था, जो ये टेबल 2 है ना, टेबल 1 में उन्होंने वही दिखाया था, वही सब। So basically इस टेबल का ये मतलब है कि जितना एरोमेटेज ज्यादा है या वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर का बीटी जितना ज्यादा है, उतना ज्यादा कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि वो खाना हाँ, सेल्फ कंट्रोल। हाँ हाँ
self control. Tendencies to inhibit and restrain impulse expression, unconventional behavior, and risk taking. Low constraint is equal and to inclined to act on impulse, take risks, and ignore conventional restriction. Cluster of traits primarily linked to control are harm avoidance and traditionalism. it's like more like impulsive control. हाँ वही impulsively खा लेना को वो लोग mainly है कि जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन है, जितना ज्यादा एरोमेटेज एक्टिविटी है एमिगडाला में, उतना बंदे में कंस्ट्रेंट बढ़ सकता है, ये बोल रहे हैं। Yes. हाँ exactly और इसके वजह से उनका बीएमआई में नेगेटिव कोरिलेशन है। exactly तो इनका हाइपोथेसिस यही था। नहीं नहीं, आई अब थिंक तो ये लोग इस स्टडी का जो उन्होंने भी Positive- मेंशन किया, जो सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली लगा कि क्योंकि वो लोग एरोमेटेज मेजर कर रहे हैं, तो टेक्निकली एस्ट्रोजन जैसे बढ़ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन घट रहा है, और जो सारे पीछे वाले हैं वो भी घट रहे हैं। तो ये उन्होंने भी बोला है कि वी डोंट एग्जैक्टली नो कि ये एस्ट्रोजन के लेवल के वजह से हो रहा है या फिर टेस्टोस्टेरोन के घटने की वजह से हो रहा है। और ये स्पेसिफिकली ज्यादा हाँ कि मेल्स में ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मेल्स में ऐसे स्टडीज हैं जिसमें उन्होंने दिखाया कि टेस्टोस्टेरोन घट जाने से इम्पल्स ईटिंग कम हो जाता है। यार तो कोई एनिमल स्टडीज है ये बताओ, ये ब्लड ईस्ट्रोजन लेवल से क्या रिलेशन था? पिछले कोई स्टडी में ऐसे कुछ बोल रहा था। हाँ, ब्लड एस्ट्रोजन लेवल के साथ उन्होंने बीएमआई का कोरिलेशन दिखाया था एक प्रीवियस स्टडी में, कि ब्लड एस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ता है तो बीएमआई घटता है। तो उस स्टडी का औरतों में, हाँ सिर्फ औरतों में? वो शायद रैट्स में किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो। ठीक है कोई बात। बाय द वे, यहाँ कंस्ट्रेंट मतलब ओनली इन टर्म्स ऑफ एपेटाइट या एवरीथिंग एल्स? लाइक आई डोंट थिंक कि एमपीक्यू क्वेश्चनर में सिर्फ एपेटाइट के ऊपर है, लाइक दैट्स अ जनरल पर्सनालिटी ट्रेट क्वेश्चन है। सो इट्स मोर ऑफ लाइक रिस्क टेकिंग एंड इम्पल्सिव एक्शन। सो व्हेन दे मीन कंस्ट्रेंट, दे बेसिकली मीन कि इम्पल्सिवली कुछ ना कर दिया हो, मतलब इम्पल्सिवली ना खा लिया हो, या मतलब वही। तो ये भी है कि हाँ लाइक ये इम्पोर्टेंट है कि exactly the questionnaire doesn't really study food related behavior. ओके, जनरल कंस्ट्रेंट। या दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, क्योंकि हाँ ये है। हाँ, स्पोर्ट्स आई कैन टेक रिस्क एंड ऑल दैट, बट मैं तो खाऊंगा ही नहीं, ऐसे नहीं। हाँ एग्जैक्टली ये थोड़ा है कि एमपीक्यू क्वेश्चनर के मतलब कोई फूड वाला कुछ क्वेश्चनर होता तो शायद पता नहीं, हाँ ये तो अच्छा पॉइंट। मे बी। हाँ ये एक है कि अगर फिर से ये रीडिजाइन करना, तो मे बी ये हम देख सकते हैं कि एमपीक्यू को और क्वेश्चनर से रिप्लेस किया जा सकता है मे बी। यार कोई एनिमल स्टडीज हुई हैं क्या जिन्होंने मतलब एक्चुअली एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एनालाइज किए हैं माउस में मारने के बाद उनको? ये मुझे पता नहीं, मतलब इन ह्यूमंस में नहीं है, मुझे पता है ह्यूमंस में तो इन विवो स्टडी तक हुआ नहीं है कभी। हाँ नहीं, वो तो मुश्किल ही है। हाँ रैट्स में हुआ होगा, रैट्स में तो मार के सब कुछ ही देखते हैं, तो हुआ होगा फिर। एग्जैक्टली, ठीक है मतलब आई थिंक उससे शायद बेटर समझ में आया ना। आई थिंक बेस्ट वे तो यही होगा कि एस्ट्रोजन मेजर कर लो सीधा सीधा। हाँ पता एग्जैक्टली चल जाए कि पर एस्ट्रोजन अब हाँ वही तो मतलब ये भी है कि वो लोग अगर ईआर नहीं तो मेरे पता नहीं, अगर ईआर का कोई रेडियो टेस्ट नहीं है, वही प्रॉब्लम है ना अच्छा कि ओके, नहीं है, प्रोसेस ही नहीं है तो। हम्म। तो बेसिकली ऑल्दो प्लाज्मा एस्ट्रोजन, हाँ ये था कि प्लाज्मा एस्ट्रोजन लेवल बीएमआई के साथ कोरिलेशन ऑलरेडी लिटरेचर में है। The significant correlation in this study point towards a possible synergistic action of the circulating estrogen with the locally produced estrogen in the amygdala. ओके नाइस। हाँ क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है ना कि लोकली अगर डिफर कर रहा है तो वो भी हो रहा है, तो मतलब सिनर्जिस्टिक एक्शन बोल रहे हैं वो लोग। ओके हाँ और ये उन्होंने भी मेंशन किया था कि सिंस द स्टडी वाज ऑन एरोमेटेज एक्टिविटी, तो men में the primary mechanism responsible for negative correlation may not necessarily be the increase
in estrogen, but also the concomitant decrease in testosterone and the resultant decreased stimulation of brain androgen receptor. तो अभी एक लिमिटेशन है कि हम एग्जैक्टली हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं कर पाए, मतलब हाँ कि हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हुआ हाँ बट कि पीरियड ये है, हाँ कि हाइपोथेसिस गलत नहीं है, ये मतलब अभी गलत भी प्रूव नहीं हुआ और हाँ प्रूव भी नहीं हुआ। नाइस। और ये जो पॉजिटिव पॉइंट है फ्रॉम दिस स्टडी कि सिंस नो सिग्निफिकेंट सेक्स डिफरेंसेस वर नोटेड, तो ये जेंडर न्यूट्रल कंट्रीब्यूटर ऑफ बीएमआई की तरह स्टडी किया जा सकता है। ओके पर नाइस नाइस। जो हाँ पर इसमें दो चीजें, एक तो थोड़ा सैंपल साइज कम हो गया था, और स्पेशली मुझे लगा कि when their main hypothesis pertains to constraint, कि वो लोग मैकेनिज्म बोल रहे हैं बीएमआई घटने का कि एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो कंस्ट्रेंट बढ़ेगा, बीएमआई घटेगा, तो उनका कंस्ट्रेंट का सैंपल साइज थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। लाइक रादर उन्होंने बीएमआई 43 में स्टडी किया और कंस्ट्रेंट 27 में, मे बी थोड़ा बढ़ा सकते थे। मेरा एक डाउट है कि इज हाँ कंस्ट्रेंट जेनेटिक इनहेरेंट ट्रेंट और इज इट सब्जेक्ट टू एस्ट्रोजन? मतलब क्या है वहाँ पे मैप, क्या मतलब कॉजलिटी कैसे बनती है कि क्योंकि बंदा कंस्ट्रेंट है इसीलिए एस्ट्रोजन बना रहा है, कि क्योंकि एस्ट्रोजन बनना है इसीलिए बंदा कंस्ट्रेंट है? बेसिकली इनका तो था कि क्यों मतलब जब एमिगडाला में ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा, तो मतलब जिस बंदे का ज्यादा एस्ट्रोजन एमिगडाला में बनेगा उस बंदे का ज्यादा कंस्ट्रेंट होगा, कि तो चांसेस वो हाँ तो मतलब उनका वो होता है कि पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा हॉर्मोन्स, जैसे मतलब ओके मतलब होता है। हार्मोन्स तुम्हारा ईटिंग हैबिट्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं हाँ 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 और वही बस ना, और कुछ सब्सिक्वेंटली नहीं? तुम्हारा हाँ, और ईटिंग हैबिट्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो ओके लोग ओके अंडरस्टूड। स्टडी करने के लिए बीएमआई को लिए। तो ये जो है, तो मुझे जो लगा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज वो लोग कर सकते हैं इन द फ्यूचर कि हाँ फॉलो अप। हाँ वेट चेंजेस को स्टडी करें कि अगर सपोज किसी का बढ़ रहा है, एक बंदे का ब्रेन में एस्ट्रोजन बढ़ गया, तो उनका हाइपोथेसिस के अनुसार उसका कंस्ट्रेंट भी सब्सिक्वेंटली बढ़ेगा, तो उसका फ्यूचर में वेट अगर घटे तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है इसका एस्ट्रोजन बढ़ गया तो देखो बीएमआई घट गया। हाँ सही सही। हाँ तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज वो लोग कर सकते हैं। एक तो लगा कि सैंपल साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 43 में अगर लोग एमपीक्यू क्वेश्चनर वाला करते तो बेटर रहता। और यही है, और बताओ। मैं तो हो गया, थैंक यू। पात्रा क्वेश्चन है देख। एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग। क्या क्वेश्चन है? हाउ डू हार्मोन्स अफेक्ट पर्सनालिटी? लाइक ब्रेन में अमिगडाला में होगा कुछ, लाइक एग्जैक्टली मैकेनिज्म तो मुझे नहीं लगता उतना वेल डिफाइंड है क्या उतना वेल डिफाइंड कि क्या? वो चूहों में तो बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया है कि टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल कैन अफेक्ट एग्रेशन। हाँ टॉक ऑल्सो नो, जो टीएनक्यू सेल्फ्रेस का होता है हर हाँ साल, हाँ 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 उसमें वो बंदा आया भी था जिसने ये सारा काम किया हुआ है। हाँ मतलब नहीं मतलब मैकेनिज्म डिफाइंड है क्या इसका, मतलब स्टडीज तो हुए हैं, मुझे भी पता है आई कि रिमेम्बर ब्रेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन पे उसका टॉक था, ब्रेन के अंदर वाला। ओके। हम्म। मुझे ज्यादा याद नहीं है उस के बारे में। हाँ नहीं मतलब मैकेनिज्म क्या ही होगा, कुछ रिसेप्टर ही होंगे उसमें। लोकेशन का। रिसेप्टर का कुछ लोचा, हाँ मतलब जाके तो रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। लोकेशन का भी लोचा हो सकता है ना, कि कौन से लोकेशन पे हाँ रिसेप्टर्स हैं। एग्जैक्टली कि किस सेंटर को स्टिम्युलेट कर रहा है। हाँ मोटर सेंटर नहीं है, इमोशन वाला क्योंकि सेंटर है। हाँ हाँ क्योंकि इनका पेट स्कैन में उन्होंने रीजन ऑफ इंटरेस्ट अमिगडाला को लगा दिया था, हाँ तो लिम्बिक मेनली वो सिस्टम। लोग स्टडी लिम्बिक सिस्टम को कर रहे थे। आई मतलब नीड समथिंग मोर, क्या बोलते हैं, अक्यूट, क्या बोलते हैं,
like some task हाँ related stuff. हाँ हाँ वही कि मैं बोल रहा था कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में अगर वेट लाइंस को स्टडी करें तो वो थोड़ा अक्यूट होगा ना हाँ कि वो कर सकते हैं, और इवन फॉर द पर्सनैलिटी वो तो बहुत क्या हाँ बोलते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग ना, बचपन से उसका पर्सनैलिटी बना हुआ है और तुम एक स्टैंड पे पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहे हो, सो दैट वुड बी मोर लाइक कॉजैलिटी उल्टा जाएगा, मुझे नहीं पता। एक क्वेश्चन है कैन वी यूज ईआर ब्लॉकर्स टू रिड्यूस ओबेसिटी, पर ये पहला स्टडी है ना तो हम अभी नहीं बोल सकते कि ईआर ब्लॉक कर देंगे तो ओबेसिटी घट जाएगा, लाइक ऐसे हाँ मतलब डाइट एंड और एक्सरसाइज ही बेस्ट है यार। आई थिंक इट मतलब वुड बी बेटर टू स्टडी सम क्या बोलते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन एन एक्यूट स्टेट, कोई बिहेवियर टास्क दो और फिर एमिगडाला में मेजर करो, क्योंकि हाँ पर्सनैलिटी क्वेश्चनर तो बहुत हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ, और नहीं तो कोई फूड वाला क्वेश्चनर भी यूज कर सकता है ना आई गेस, फूड वाला तो होते हैं क्वेश्चनर, ईटिंग बिहेवियर वाला। हाँ बट ये भी माई काफी माई अच्छा क्वेश्चन माई है। सेज लाइक कि वो एमिगडाला में जो एरोमेटेज का कंसंट्रेशन है that can be more now and it can be less tomorrow morning, we don't know, so the point is कि to measure you measure the amygdala का concentration अभी, तो अभी के अभी कुछ और behavioral task करा के कुछ measure करवाओ उनसे, ये हाँ क्वेश्चन ये अच्छा था कि बाकी आपने risk मेंशन taking करा enough कि for वेट something. चेंज होगा तो क्या फूड पे सेल्फ कंट्रोल भी बदलता जाएगा क्या? हाँ मतलब अगर ब्लड लेवल में एस्ट्रोजन चेंज होगा तो अगर ब्लड के साथ उन्होंने दिखाया है कोरिलेशन की ब्लड में चेंज होता है तो क्या दिखाया है? बीएमआई चेंज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हाँ कोरिलेशन दिखाया क्या? नहीं नहीं ऐसे ही नेगेटिव आता कि कोरिलेशन, नेगेटिव। नेगेटिव हाँ हाँ। रो तो बढ़ता है तो भूख कम लगती पर है। उसमें भी ये है कि बीएमआई दिखा था, बीएमआई इज मोर ऑफ अ लाइक लॉन्ग टर्म थिंग, एट अ पॉइंट हम देख रहे हैं और एग्जैक्टली कंट्रोल ऑन फूड एट दैट मोमेंट ब्लड में एस्ट्रोजन के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं लगता उससे हम बोल सकते हैं कुछ, है ना। सॉरी। मतलब एट दैट पॉइंट ब्लड में कितना एस्ट्रोजन है उससे कंट्रोल फूड हम एग्जैक्टली exactly नहीं बोल सकते ना उस स्टडी से, क्योंकि वो स्टडी तो था कि बीएमआई के साथ उन्होंने कोरिलेशन दिखाया ये था। छोटी सी स्टडी, आई डोंट थिंक इससे अपन बहुत ज़्यादा से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ लाइक क्योंकि मोर स्टडीज आर नीडेड लाइक वही। मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि मतलब, और एस्ट्रोजन लेवल्स तो मतलब हर सेकंड वेरी करते होंगे ना, मतलब हाँ दे आर हाँ ऑल रियल टाइम। मतलब ऐसे एक बंदे का फिर 10 घंटे का पेट स्कैन तो कर नहीं सकते, फिर कंटिन्यूसली देखते जाओ, ऐसा मारो वगैरह जो भी करो। और फिर ये मैं जब इनका वो टू कंपार्टमेंट मॉडल वाला भी काइनेटिक्स थोड़ा पढ़ रहा था ना तो वो लोग ऐसे बोले थे कि ऐसे ये 90 मिनट स्कैन जिन्होंने किया है हाँ उसमें जो K4 वाला कंपोनेंट है ना तो वो वाला फुल्ली स्टेबलाइज शायद नहीं होता, ऐसा कुछ लिखा था। ओके, हाँ वो भी सिंप्लीफिकेशन है। हाँ कि जो एकदम स्लोएस्ट कंपोनेंट को उन्होंने ऐसे इग्नोर मार दिया, ऐसा कुछ है। So is it the first time this sort of study is being done, हाँ like this is the first group? ह्यूमंस में हाँ, Okay. आई गेस इसीलिए सैंपल साइज भी कम था कि फर्स्ट टाइम तो उन्हें पता भी नहीं था कि आइडियल सैंपल साइज भी कितना होना चाहिए। और it can also be because of low level of estrogen on the ER blockers, so ER blockers, फिर estrogen blockers will actually cause obesity so no point blocking them। हाँ tamoxifen से WT gain weight gain होता है, this is एस्ट्रोजन रिड्यूसेस एपेटाइट, एपेटाइट लो, एपेटाइट इज इक्वल टू लो ओबेसिटी। तो बस, तो अगर एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देंगे तो एपेटाइट बढ़ जाएगा, और एपेटाइट बढ़ जाएगा तो ओबेसिटी बढ़ जाएगा, ऐसा हाँ लॉजिक है मेरा। हम्म। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस टॉक बाय एचएस खान, बढ़िया पेपर था यार, मज़ेदार था।
लोगों को Thank you. लोगों को लग रहा होगा कि नहीं आई एम फैट बिकॉज ऑफ माई अमिगडाला नाउ. That's what people are thinking. If anyone has any doubts, please let us know. We'll also have this meeting again in 2 weeks of time. We'll let you know who is posting वगैरह कुछ like कौन कर रहा है. और कंट्रीब्यूट करते रहना, किसी को भी बीच में रोकना है तो प्लीज़ फील वेरी फ्री. वी डोंट टेक इट पर्सनली. Hmm. That is all from our side. Okay. Okay, so I'll leave, then everyone will automatically leave out. Thank you everyone for joining. Yeah, we. Okay. Bye.